Hello students, in the last video we studied about optical isomers. In that we studied the example of 2-chlorobutane. So a chlorobutane is a chiral atom. In that a carbon is chiral atom, means carbon is bonded with 4 different groups or atoms. That's why it is called as chiral carbon atom, and the molecule is called as chiral molecule. So this is showing mirror image. Now we are going to study the plane polarized light. An ordinary light consists of electromagnetic waves having oscillations of electric and magnetic field in all possible planes perpendicular to direction of propagation of light. See, ordinary light ordinary light which is coming from the sun or the light, it is consist of electromagnetic waves and it is having oscillations, means they will move in crust and trough, successive crust and troughs. साइन वेव्स जैसे होते हैं, जैसे एक ऊपर होगा फिर एक नीचे, उस फॉर्म में दे ऑसिलेट्स मीन्स दे विल पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन दिस फॉर्म. ऑसिलेशंस होते हैं उसके. तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, लेकिन वो प्लेन्स कैसे होते हैं? इट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ प्रोपेगेशन. डायरेक्शन जो अभी यू नो दैट लाइट इज़ पासिंग इन अ स्ट्रेट लाइन. सो स्ट्रेट लाइन में भी उनके जो वेव्स है वो अप एंड डाउन होते रहते हैं. सो व्हेन दे आर डूइंग अप्स एंड डाउन्स दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. जो लाइट होती है उनसे वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं. सो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज पास थ्रू निकोल्स प्रिज्म, oscillations only in one plane emerge out. Now Nicol prism is one of the prism. The speciality of Nicol prism is that it is a type of prism made from pieces of calcite, a crystalline form of calcium carbonate. It is arranged in a special manner, and Nicol prism is also called as polarizer. Means it will polarize the light in one direction only. So the light having oscillations only in one plane perpendicular to direction of propagation of light is known as plane polarized light. देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है. क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइन विल पास इन दिस वे. In all way it is a straight line, but see the direction, they can go in any way. So it is perpendicular. कभी परपेंडिकुलर, देखो सारे स्टार बन रहे हैं यहाँ पे. ऑर्डिनरी क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट है. व्हेन दिस सच ए लाइट इज पास थ्रू निकोल प्रिज्म, इसकी खासियत ऐसी होती है कि ये क्या करता है, बस उसको एक ही प्लेन में लाइट देते हैं. सो ऑल दिस लाइट, ऑर्डिनरी लाइट इज कन्वर्टेड इनटू a straight line. A cross section of plane polarized light is given, so it will go in only one direction or only one plane. और वो भी plane कैसे होता है? It is perpendicular to the direction of propagation of light. Direction of propagation of light means जो जिस वे से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होना. So light having oscillations only in one plane perpendicular to direction of propagation of light is known as plane polarized light. So because of this we will get plane polarized light. So ordinary light is converted into the light which is having only one plane and which is perpendicular to the direction of propagation of light. So instead of so many we will get only one line. Next is optical activity. Now optical activity, this we studied in last topic also. When an aqueous solution of certain organic compounds like sugar, lactic acid is placed in the path of plane polarized light, the transmitted light has oscillations in different
plane than the original. In the other word, the incident light undergoes rotation of its plane of polarization. The plane of polarization rotates either right, that is clockwise, or left, that is anti-clockwise. This property of a substance by which it rotates plane of plane polarized of incident line plane that polarized light is known as optical activity. See, whenever any solution, when we will place in a polarized light means when it is passing or it is passing after Nichols prism, that is called as plane polarized light. सो ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट अगर हम कोई सोल्यूशन में डालते हैं या फिर सोल्यूशन रखते हैं, फॉर एग्जांपल शुगर, लैक्टिक एसिड, सो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, द ट्रांसमिटेड लाइट, जो ट्रांसमिटेड लाइट आ रही है उन निकोल प्रिज्म से, दैट हैज़ अ ऑसिलेशंस इन डिफरेंट प्लेन देन द ओरिजिनल वन. ओरिजिनल जैसे नहीं रहेगा लेकिन वो सारी जगह पे रहेगा. सो the incident light undergoes rotation of its plane of polarization. जो इंसिडेंट लाइट आ रही है वो रोटेट होती है. क्यों रोटेट होती है? बिकॉज ऑफ पोलराइजर, बिकॉज ऑफ निकोल्स प्रिज्म. और कौन से डायरेक्शन में रोटेट होती है? वन, इट विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज राइट, एंड अदर इज इट इज मूव्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज इन लेफ्ट. सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय विच, ये कौन सी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है? जो भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को या फिर लेफ्ट में रोटेट करती है या फिर राइट में रोटेट करती है. सो दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव. ओके, the substance by which it rotates plane of incident plane polarized light is known as optically active और ऑप्टिकल एक्टिविटी. देखो, वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है उसे या तो एक लेफ्ट में रोटेट करती है या फिर राइट में. द कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव. जो भी कंपाउंड की वजह से ये होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. एंड दोज डू नॉट रोटेट इट आर ऑप्टिकली इनएक्टिव. ऑब्वियसली ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि उनसे कुछ इफेक्ट नहीं होता प्लेन पोलराइज लाइट, इट विल गो इन अ स्ट्रेट, सो इट इज़ नॉट रोटेटिंग इन लेफ्ट और राइट. सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस. So, optical activity of a substance is expressed numerically in terms of optical rotation. तो ये हम कब कहेंगे कि वो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है? When it is having optical rotation. So देखो, ऑप्टिकल रोटेशन क्या है अभी? The optical activity of a substance is expressed in numerically in terms of optical rotation. The angle through which a substance rotates the plane of plane polarized light on passing through it is called optically rotation. Optical rotation. देखो, एक सब्सटेंस है, वो कौन से एंगल से उस वहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट पास हो रही है, सो और वो रोटेट हो रही है, दैट इज द रोटेशन. सो इट इज़ अकॉर्डेंस विद द डायरेक्शन ऑफ ऑप्टिकल rotation. An optically substance is either dextro-rotatory और leo-rotatory. बहुत ज़्यादा एंगल से रिफ्लेक्ट नहीं होते हो, एक या तो लेफ्ट पे रोटेट होंगे या फिर राइट में. सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी. तो डेक्स्ट्रो और लियो, देखो, अ कंपाउंड विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट. राइट मतलब क्लॉकवाइज है, इसीलिए प्लस साइन है और इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो. सो इट इज़ डिनोटेड विथ डी, स्मॉल डी या फिर प्लस साइन. देखो, राइट में रोटेट हो रहा है तो डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट में रोटेट हो रहा है तो वो लियो. एंड देन सिंबल इज एल और साइन इज माइनस.
Understood? When the substance is optically active, it will rotate either dextro-rotatory or leo-rotatory. Dextro-rotatory, or it rotates towards right. It is shown with the symbol D और प्लस साइन. और लियो रोटेटरी है तो ये लेफ्ट की तरफ रोटेट होता है, तो लियो रोटेटरी नाम है, सिंबल एल है, साइन माइनस. नाउ isomerism in which the isomeric compounds have different optical activity known as optical isomers. देखो जो आइसोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने लास्ट टॉपिक में भी स्टडी किया है. सो आइसोमर्स इन विच isomeric compounds have different optical activity, they are called as optical isomers. कि जिनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग है उन्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है. सो फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस Pasteur first recognized that optical activity is associated with certain type of three-dimensional structure of molecule. So Pasteur introduced the term enantiomers, the optical isomers having equal and opposite optical rotation. तो enantiomer क्या है? ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है. दे आर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट ऑप्टिकल रोटेशन. इक्वल है और अपोजिट है. तो देखो इक्वल और अपोजिट. See this figure 10.2 indicates a few objects in our day-to-day life which exhibit superimposable and non-superimposable mirror image relationship. See, first two hands are there and it is shown the mirror is showing only one hand. Here two chappals are there and then we are having only one. So they are called as non-superimposable. वो अलग ही है, that is called as non-superimposable. And here chair is there and in between mirror is kept. We are observing the mirror image after that side. So such things are called as superimposable. जैसे हम खुद को आईने में देखते हैं, that is superimposable. So we see the things exactly equal but it is opposite in direction. Okay. तो सच थिंग्स आर कॉल्ड सुपर इम्पोजिबल. और जो बहुत ही अलग ही है वो है नॉन सुपर इम्पोजिबल. सो इन दिस इंडिकेट्स अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन आवर डे टू डे लाइफ विच एग्जिबिट सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रिलेशनशिप. सो यूजिंग दिस यू विल अंडरस्टैंड what is superimposable and what is non superimposable mirror image. ये जो बीच में डॉट डॉट ब्लैक रिकल रखते हैं वो है मिरर. हियर वन थिंग इज गिवन. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड्स. कायरलिटी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कायरलिटी. देखो सबके मीनिंग्स अलग अलग है. ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड. कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है. क्यों? बिकॉज दे रोटेट्स द प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट और राइट. और कायरलिटी क्या है? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ और इट इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कि एक ही कार्बन एटम को 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, वो है उसका मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन. एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कायरलिटी. वो कायरलिटी है इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव. सो मॉलिक्यूल्स विच कंटेन वन कायरल आइटम आर कायरल, दैट इज दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज. तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मतलब वो एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, अलग है, बिकॉज ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट. The two non-superimposable mirror images are called pair of enantiomers. देखो दो non-superimposable mirror images are called as pair of enantiomer. और दूसरा है enantiomers have equal and opposite optical rotation. So enantiomers are a kind of optical isomers. तो enantiomer क्या होते हैं? Optical isomers होते हैं. So next we will study enantiomer.
The optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomer or enantiomorphous or optical antipodes. For example, 2-chlorobutane exist as a pair of enantiomers. देखो आप डायग्राम में भी देख सकते हो. सो वी हैड अ डायग्राम. इसके पहले है कि जहाँ पे वो दोनों अलग ही है क्योंकि दे आर नॉट मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल है. वाई? बिकॉज ऑल द ग्रुप्स आर डिफरेंट. So enantiomers are identically physical property. They have identical physical property such as melting point, boiling point, densities, refractive index, except the sign of optical rotation. ऑप्टिकल रोटेशन उनका अलग होता है. एक तो लियो रहेगा, एक तो एक प्लस और एक माइनस, एक लियो एक डेक्स्ट्रो. So that's why all other properties are same, but optical rotation is different. The magnitude of their optical rotation is equal, but opposite in optical rotation is opposite. They have identical chemical properties except towards optical activity reagent. बाकी सब उनका सिमिलर रहता है, बस ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट की तरफ जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो अलग होती है. An equimolar mixture of enantiomers, that is dextro or leo and leo, is called racemic modification or racemic mixture. Racemic mixture का definition आ सकता है. तो what is the definition? An equimolar means exactly equal leo and exactly equal dextro enantiomers is called racemic mixture. दोनों का मिक्सचर जब लेते हैं तो उसे रेसेमिक मिक्सचर कहा जाता है. तो ये डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट है, जैसे प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी और कैरलिटी, रेसेमिक मिक्सचर, ये इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है. सो यू लर्न इट प्रॉपरली. नाउ अ रेसेमिक मॉडिफिकेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव because optical rotation due to molecules of one enantiomer is cancelled by equal and opposite optical rotation due to molecule of the other enantiomer. एक का दूसरे से कैंसिल होता है because it is a mixture. A racemic modification is designed as DL or plus minus sign. तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है कि इक्विमोलर मॉलिक्यूल्स का जो रेसेमिक मिक्सचर है वो कैसे होते हैं. इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव. बाय? बिकॉज दे आर नोटेशंस आर कैंसल्ड बाय वन अनदर. एक प्लस है तो एक माइनस है, इसीलिए वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं. एंड देन वी हैव this 10.5.5 representation of configuration of molecules. This is omitted. Even 10.6 is also 10.6.1 laboratory test of haloalkanes. ये भी omitted है. So we will move to next, that is chemical property. In this first property is omitted. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे. देखो अभी हम केमिकल प्रॉपर्टी स्टडीज़ कर रहे हैं, मतलब रिएक्शंस ऑफ हेलोअल्केन्स. हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखा, 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देन आइसोमेरिज्म, जो भी ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो सब हमने स्टडी किया. नाउ नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of haloalkanes. When a group bonded to a carbon in a substrate is replaced by another group to get a product with no change in a state of hybridization of carbon atom, the reaction is called substitution reaction. देखो एक रिएक्शन जब होती है कि जहाँ पे
कार्बन एटम का जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट रिप्लेस होता है, दूसरा ग्रुप अटैच होता है वहाँ पे. बट डूइंग ऑल दिस थिंग्स देर इज़ नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट कार्बन एटम. वहाँ पे जनरली वैसे होता ही नहीं है, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होता है. सो द कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड इन अल्काइल हैलाइड इज़ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ये बॉन्ड कैसा है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. द कार्बन इन कार्बन X bond is positively polarized. Carbon is positively polarized. Why? Because halogens are having more electronegativity. That's why carbon is, as compared to fluoride or chloride, bromide, carbon is less electropositive, electronegative. Mostly it is electropositive, क्योंकि वो जो उनके साथ बॉन्डेड है हेलोजन, वो सारे कैसे हैं? They are more electronegative elements. So carbon X carbon is an electrophilic center. तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है. इट हैज़ देयरफॉर टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफाइल. एक इलेक्ट्रोफाइल है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करे. व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? Electrophilic means it is a electron loving and nucleophilic means it is nucleus loving species. और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होते हैं ये. सो दे आर enriched with electrons. So alkyl halides react with variety of nucleophiles to give nucleophilic substitution reaction, SN substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. The reaction is represented in general formula, that is nucleophile. देखो न्यूक्लियोफाइल जो है वो नेगेटिव साइन के होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव साइन के. चार्ज के ऊपर भी आप याद रख सकते हो. सो न्यूक्लियोफाइल इज anion plus carbon atom in haloalkane. Over here halogen is acquiring delta negative charge because of more electronegativity and carbon is requiring positive charge because of this tendency of electronegative halogen atoms. So it will give carbon is attached with nucleophile and halogen is set free. तो ये अकेला सेपरेट हो जाता है. When a substrate reacts fast, it is said to be reactive. The reactivity of alkyl halides in SN reaction depends on two factors. तो ये जो रिएक्शन है, जल्दी जो रिएक्ट होता है मतलब वो एक्टिव है. So here it depends on substitution state, whether it is primary, secondary or tertiary of carbon and nature of halogen. कार्बन का कौन सा स्टेट है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी टर्शियरी है, और दूसरा है नेचर ऑफ हेलोजन. द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज टू फैक्टर्स. देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड मतलब टर्शियरी जो है उसकी ज़्यादा टेंडेंसी है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और उसमें भी क्लोरो ब्रोमो आइडो में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है? आइडो फॉर्म की, मतलब अल्काइल आयोडाइड RI, देन RBr, देन RCl. Examples of some important nucleophilic substitution reactions of alkyl halides are shown over here. तो सारे भी रिएक्शंस कलेक्टिवली है हमें यहाँ पे. देखो ये चार्ट आपको लिखना है, बट आई विल टेल यू वन थिंग. आफ्टर दिस यू विल राइट one reaction, assuming that R is CH3 group and X is Cl. अब Cl मोस्टली सारे रिएक्शन Cl के साथ पॉसिबल है. समटाइम्स आयोडाइड के साथ पॉसिबल नहीं होता है, और Br के लिए भी समटाइम्स वी आर हैविंग सम कंडीशंस, बट Cl के लिए कोई कंडीशंस नहीं होती है जनरली. सो मोस्ट ऑफ द टाइम methyl chloride you can take and you can start the reaction whenever R is written and X is written. So these reactions one by one we will study. See, देखो
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे ये सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाले रिएक्शन है कि जैसे ये जो है वो न्यूक्लियस लविंग सेंटर है, दे आर नेगेटिव चार्ज और दे आर एनायंस, सो दे वांट टू ट्राई टू रिएक्ट विथ alkyl halides. So alkyl halides is denoted with Rx. The reagent is NaOH. aqueous है, aqueous word important है. Instead of aqueous, if you have alcoholic, then it will reduce to alkene. ओके, तो aqueous है तो ये सिंपल रिएक्शन होगा, जैसे रिप्लेसमेंट होता है हेलोजन का अल्कोहल के साथ. अंडरस्टूड. सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन विथ NaOH और KOH. नेक्स्ट इज सोडियम अल्कोक्साइड, NaOR, NaOCH3 ऐसे भी आ सकता है. सो मिथाइल क्लोराइड आपको लेना है, R की जगह पे CH3 और X की जगह पे हेलोजन. सो दिस विल गिव ROR डैश प्लस NaX. R डैश मतलब यहाँ का रिएजेंट का जो R डैश है वो आएगा. सो हियर यू विल गेट ईथर. दोनों जगह पे अल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं, या फिर सेम होंगे या फिर डिफरेंट होंगे. सो इसीलिए एक को R डैश लिखा है, एक R है तो दूसरा R डैश. सो हियर द प्रोडक्ट इज ईथर. सो थर्ड रिएक्शन इज विथ सिल्वर कार्बोक्सिलेट. सिल्वर कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला आता है RCOOH. H को रिप्लेस किया है सिल्वर के साथ, सो ये हो गया सिल्वर कार्बोक्सिलेट. सो सिल्वर कार्बोक्सिलेट विल गिव द कंपाउंड प्रोडक्ट, दैट इज प्रोडक्ट इज ईस्टर. ईस्टर इज व्हाट? RCOOR. ईथर और ईस्टर में डिफरेंस है देखो. सो ये सिल्वर क्लोराइड और हेलो मतलब सिल्वर के साथ जो हेलोजन है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज RX रिएक्ट्स विथ अल्कोहलिक अमोनिया, और वो भी एक्सेस में. अमोनिया कभी भी अगर रिएक्ट करना है तो उसको ज़्यादा ही लेना पड़ता है, अदरवाइज दे विल नॉट शो द रिएक्शन. सो RX रिएक्ट्स विथ अमोनिया, इट विल गिव प्राइमरी अमाइन RNH2. NH2 इज अ प्राइमरी अमाइन प्लस HX. ओके, सो ये जो सारे रिएक्शंस है आपको लिखना है अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स. ऐसे नहीं कि बस जनरल रिएक्शन लिखा है और छोड़ दिया. नो, यू हैव टू राइट द so these three reactions you will write down in your notebook along with the general reaction and with example. ये तीन होने के बाद देखो, और फोर्थ वी स्टडीड, ये सारे ही लिखने हैं आपको एक्चुअली. फिफ्थ वन देखो. सो फिफ्थ रिएक्शन इज अलॉन्ग विथ पोटेशियम साइनाइड, इट इज अल्कोहलिक. RX रिएक्ट्स विथ पोटेशियम साइनाइड, इट विल गिव RCN, दैट इज नाइट्राइल. उसका नाम कैसे आएगा? नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड. आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो या फिर एक लिख सकते हो. सो RX विल फॉर्म. No, RX will not form here, KX will form. So make the change. पोटेशियम है ना, पोटेशियम साइनाइड है तो साइनाइड R की जगह पे जाएगा और पोटेशियम X आएगा यहाँ पे. देन सिक्स्थ वन, RX प्लस सिल्वर नाइट्राइल और सिल्वर साइनाइड. नाइट्राइल भी बोलते हैं ना, साइनाइड भी बोलते हैं CN ग्रुप को. सो इट विल फॉर्म आइसोसाइनाइड. और सिल्वर हैलोजन, silver halide will form as a precipitate. Then we have RX plus potassium nitrite KNO2. It will give alkyl nitrile, that is RONO. N और O के बीच में डबल बॉन्ड है, लास्ट वन, प्लस KX. So eighth one, RX will react with silver nitrite AgONO. EgNO2 ऐसे. So it will form nitro alkane
नाइट्रो अल्केन आता है बिकॉज इट इज़ NO2 प्लस सिल्वर क्लोराइड विच विल फॉर्म एज अ प्रेसिपिटेट. सो दीज आर द रिएक्शन. उन्होंने अभी कंबाइन करके ही दिया है, बट स्टिल यू हैव टू राइट डाउन इन द एग्जाम्पल फॉर्म. जैसे एक जनरल लिखो फिर एग्जाम्पल लिखो. तो एग्जाम्पल में आपको क्या लेना है, आर की जगह पे मिथाइल ग्रुप ले लीजिए और आर डैश की जगह पे इथाइल ग्रुप ले लीजिए. नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर. सो ओके, नाउ यू विल टुडे you will write this chart in your notebook and along with one example of each. Okay.